Good morning, class. Good Good morning. morning, madam. Good morning, madam. So, yesterday we had done up to which diagram? I think activity diagram. Activity diagram and state chart diagram we had done yesterday, right? Yes. So, today we will be doing component diagram and deployment diagram, right? So, they have mentioned here deployment diagram, but we also have to study about the component diagram. So, if we see here in your block 1, unit 5, the architectural diagrams are given, which is one is a component diagram. So component diagrams are used to show how the physical components in a system have been organized. Physically, how your system is organized, that is what it will be showing you. It shows the set of components and their relationship in the system. It helps in understanding if the system functional requirements are covered by planned development, right? So the relationship among components are called dependencies. This diagram models a physical aspect of the system, including software components, source code, runtime code, and executables. So this is how it is shown. So the components of a component diagram are components, interfaces, ports, and connectors. So component, what is a component in a component diagram? So in the component diagram, component represent a reusable piece of software and is the physical and replaceable unit of the system. So this is how a component is shown. This is a banking system, or you can whatever sub components also you can make it. So this is a software component of the system. So according to Grady Booch, at the lowest level, a component is a cluster of classes that are themselves cohesive but are loosely coupled relative to other clusters. So he suggested that each class in the system must live in a single component or at the top level of the system, right? So like if you have an employee management system, so you will have different components like the employee details will be one, attendance will be one, salary component will be one, whatever. The different components what you are making, those that kind of components you have to think of, the substructures or sub programs you can say, or package you can say. So components are represented as triangle with tab having the name of the object in it. So like this. A component may also contain other components also. The components do not directly depend on other component but on interfaces. So dependencies may also exist among the component. So that is there. Then what is interface? Components of the system use interfaces to communicate with each other. So if you have two components, this is banking system, this is bank customer. One component is banking system, the other component is bank customer. So how they are communicating is through an interface. So the two components communicate with an interface. It defines a component's interaction details. It is a collection of operations that are used to specify a service of a class or a component. The interface are shown in the ball and socket notation like this, right? Just hold on for a second. Yeah, sorry. So socket is the interface, or this ball and this half circle. This denotes a interface between the two components. So the interface are shown in the ball and socket notation, or as a typical class with the stereotype interface. So in interface, the ball notation is used to specify the component's functionality. A component collaborates with other component through well-defined interfaces that specify the system functionality to the environment. So this notation is the interface, which is how they are interacting with each other, right? Then you have another thing, another component, which is ports. The ports are used by the component for its interaction with its environment and also to control the implementation of all the operations in the component. So with the environment,
you have a socket like this, right? So it is in the interaction with the environment is through ports, right? And also control the implementation of all the operations in the component. Along the edge of the component, a port is shown as a small square like this. Ports provide encapsulation to the structured classifier. Ports have public visibility, but components may also have hidden ports. So interfaces may be linked to the ports, but one-to-one relationship between ports and interface is not required. Generally, ports are unnamed, but you can provide the name of the port also, right? Then you also have connectors. A connector is used to show a link between the ports of components. It also specifies the communication between two or more classifiers. If one port provides the interface required by the other port, they can be linked together. So there are many types of connectors, a delegation connector and assembly connector. So there are two types of connector, the link between the components like this is your connector line, right? So if one port provides the interface required by the other port, they can be linked together. There are many two types: delegation connector, assembly connector. Delegation connector links together the port of a part and port of a component, this providing the interface thus providing the interface. Delegation connector are used when ports inside the composition need to be connected with port outside the composition. Okay, so if you are connecting, delegation connectors are those when ports inside the component. So there is port inside the component. I think it is not composition; it is component. Need to be connected with port outside the component. So then delegation connector is used. Otherwise, you will use a assembly connector, which is it connects two or more components that define services provided by one component to another. That is assembly connector. So this is an assembly connector that bank account is providing some services to the credit card. So that is one or more components that define the services. So that is how assembly connector is there. So that kind of a thing. So they have made a component diagram of an ATM system. So you have in an ATM system, you have components like ATM machine component, right? You have a database component, you have a web page component, a client console component, a card reader component, a customer console component, right? And so this is your component. And ATM machine has an interface like ATM transaction happen in an ATM machine. This is the you can also create a port here. A port can be created because we can connect to the outside world. A port can be connected to the outside world. It is the connection is with the ATM transactions are happening. An ATM machine is connected to the customer console. It is also connected to the bank database for information, right? And bank database has account information of the customers. Again, a port can be made here. And the client console will be connected to the database of the bank, right? Client console will be the web page, or this web page is also there. Client console is there. The web page is all for online transaction. Web page is there. Client control transactions. Client this is there. And card reader is also connected to the database, and it is also connected to the customer console for web transaction or web merchant transactions. And web page is also connected to the card reader. Something like that they have created. So you can create your own also. It's just an example, right? So if we have to make it in our visual paradigm, so we'll take a new diagram, and this time it is a component diagram.
So in a component diagram, you will have component like this. So component name can come here, like here we are saying banking or ATM system, whatever you want to say. So this is an ATM system component, and this can be there can be a connection with another. So this generalization association with a component you can create, or this is aggregation. You can also have an interface. So if you want to create an interface, so this will be. So this can you can create an interface like this, and then you can have another component. So usage component you can make it like this, right? So you can have this kind of a thing also. If you want to make it that the services are provided through interfaces to the other component, so this way you can make it. So like to the customer console, if you want to show it, so here you can say like this. So through interfaces, so here you can write what kind of interface or services the console is providing you, that kind of a thing, right? So this is there. So I'm writing ATM transaction like that. You can also add a port. I don't know port is there or not. This is a port. You can add a port to your this also if you want. This way you can add a port also to the component that is there. So you can have a port, you can have an interface that is you are providing interacting with an interface to the other system, that kind of a thing. So again, if you want a connecting component, you can make connect it like this also, right? Bank database, suppose, right? Can you understand how Yes, madam. this thing is created? So Yes. this is your component diagram, and in your book they have asked you to draw a component diagram for online examination system. Now think of components in an online examination system. What all components will be there? There will be examination department, Okay. and then there will be students, and then there So will be there will be a software component or a web page for a student to log in, right? hmm, So student, you can say console will be there. then from examination department there will Examination be department, you will be having a database of question bank. So one of the things was there. It will be right and then there database. will be answers will be there for So the that is in the questions, database only, no question and answers. right? Test papers and this that will be. Then there will be Hmm, examination portal, or you can say examination system will be there, hmm, component which is connected to the database, uh, right? And student console is also connected to the examination system, system. right? Then Then they can connect to the examination system accordingly, and login and all that will happen in the examination system, and they can hmm, select a particular exam from the database, something like that. hmm, So that is all. That is what you have to show. The components are the software part of the hmm, system, right. right? That is what you have to show in this. So if we go for if
they have shown any component diagram, I don't know. But component diagram, many people don't use them generally. Most of the earlier diagrams what we have studied, they are generally used. So here they have used, and the online examination system is the main component. Can you see here? You can have a component, and inside that component also you can have multiple components. Can you understand that? Right. Right. So online examination system is your main component. Inside that you have exam provider information, subject information, exam content. Right. And examinees access the examinees can access the result database. Right. And there is an information database where exam provider information will be taken. But in this, the arrows that are going from exam providers to subject to the that type of data is not shown. It is shown in a different manner. No, this can also be a scenario. No, your main component is what? The online examination system. Online examination system, and the subcomponents of that main component are exam provider information. Hmm. Matlab what all exams are available, right? Hmm. And subject information, which subject you want to give the exam content, right? So this is connected to the database. This Yes. component, the whole component, is connected to the information database where it will have the information about the different exams, the subjects, exam content, Right. right? Right. So, and when the examinee who appears for the exam, he is Hmm. connected to this component, subject and exam he can give Hmm. through the database, whatever information is fetched, and he can give the exam and the result, which is It not directed to result the examiner. database is a separate database they have created. From the Yes. result is given to the examinee. Yes. मैम So एक that बार ये वाला भी समझा दीजिए, ये जो ये यहाँ पे है ना, एक कोड वन पे जो दिख रहा है आपका, इसी के थर्ड वाला है जो आपने अभी लिया है, इसके ये थर्ड वाला ये पिंक वाला, हाँ ये वाला, इसको देखने इसमें क्या है। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का कंपोनेंट लिया है, यस मैम। इन्होंने ऐसे अलग से बनाया है, आप इसके अंदर ही बना सकते हो, ऐड एग्जाम, ऐड क्वेश्चन, माय प्रोफाइल। इन्होंने बनाया है कि हम कैसे एडमिन जो है, यस, एडमिन यूजर का एक कंसोल बना होगा, एक कंपोनेंट होगा, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में कनेक्ट करके उसमें ऐड कर सकता है, एग्जाम क्वेश्चन ऐड कर सकता है, और प्रोफाइल स्टूडेंट्स का ऐड कर सकता है। इट इज फ्रॉम द एडमिन्स व्यू एडमिन पॉइंट। या ओके, तो इसमें जैसे अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो हम किसी भी व्यू पॉइंट से बना सकते हैं इसको। आप अपने व्यू पॉइंट से बना सकते हो, बट बेसिक व्यू पॉइंट शुड बी दिस वन, दिस इज बेटर व्यू पॉइंट, क्योंकि ओवरऑल तो ये हो रहा है ना। हाँ ठीक है। ओवरऑल तो जो हो रहा है वो है कि एक एग्जामिनी आएगा, वो अपना फॉर्म फिल करेगा, एग्जाम प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन में सेलेक्ट करेगा पर्टिकुलर एग्जाम, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट को वो सेलेक्ट करेगा, और उस डेट को, पर्टिकुलर डेट को पिक करेगा, पेमेंट करेगा, और फिर डेटाबेस में उसका वो पर्टिकुलर एग्जाम देगा, और डेटाबेस से क्वेश्चन उठ के आएंगे, आंसर्स करेगा, फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये द बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी दिस। ओके, राइट, एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज करेक्ट, बट हम एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल चीजों की बात कर रहे हैं कि आपका एक ऑलरेडी डेटाबेस है जिसके अंदर क्वेश्चन बैंक है, आंसर की है, सब कुछ पड़ा हुआ है, एक एग्जामिनेशन सिस्टम बना हुआ है आपका, उसमें कंपोनेंट्स बने हुए हैं, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बन चुका है, और एग्जामिनी उसमें क्या कम्युनिकेट करेगा, और इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर होगी, और फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा, बस ये शो करना है हमें। कंपोनेंट्स बनने का मतलब ये है कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बन चुका ना। हाँ हाँ,
अब वो सॉफ्टवेयर में एडमिन कभी भी ऐड करता रहे क्वेश्चन, प्रोफाइल ऐड करता रहे, वो दैट डजंट मैटर टू अस। तो एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है हमें, सोचना है ओवरऑल सिस्टम। ओके। तो दिस इज अ बेटर एग्जांपल। तो यहाँ पे इन्होंने कनेक्टर का यूज किया, इफ यू सी इन दिस, यहाँ पे कनेक्टर का यूज हो रखा है। टाइम लगा रहा है ये ओपन होने में। हाँ, यहाँ पे ये क्या है, इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन डेटाबेस से बॉल एंड कंपोनेंट। सॉकेट जॉइंट। हाँ, यहाँ पे पोर्ट है। हाँ, this is आउटसाइड port, yes. आउटसाइड द एनवायरनमेंट पोर्ट से कनेक्ट करेंगे ना। पोर्ट क्या Yes, और करता है, inside the आउटसाइड environment एनवायरनमेंट। interface. हाँ, तो एग्जामिनी आउटसाइड एनवायरनमेंट है, राइट। वो कनेक्ट Right. कर रहा है पोर्ट से टू द हाँ। एग्जामिनेशन सिस्टम। और इसमें हम्म, सब कंपोनेंट्स हैं, इस एग्जामिनेशन कंपोनेंट सिस्टम में सब कंपोनेंट्स हैं, और दे आर हम्म, कनेक्टेड टू द डेटाबेस हम्म, through an interface. They are communicating through an yes. interface. This is how they are shown, हाँ, हम्म, ठीक है। right? So this is how this they are showing for the examination system. तो अब वो अलग अलग examples उन्होंने दिए होंगे, आप इसको भी देख सकते हो। So just an thing they are showing. Then they are asking you to make a component diagram for order processing application. तो order processing application में क्या क्या सोचोगे, क्या क्या component एक होंगे? तो यूजर हो जाएगा जो उसको यूज हाँ, करेगा, तो वो होगा कस्टमर, जो भी होगा। कस्टमर, वो पोर्ट के वो थ्रू कनेक्ट हो आउटसाइड जाएगा। एनवायरनमेंट। हाँ, तो वो कनेक्ट हो जाएगा आपके ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में, जो भी वो हाँ, उसके साइट सब होगी, कंपोनेंट्स वेबसाइट होंगे जो। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के, या ऑर्डर हाँ, फ्लिपकार्ट प्रोसेसिंग। से कनेक्ट हो जाएगा। सपोज हम उसको ऑर्डर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन ही बोलते हैं, हम्म, ठीक है। तो तो उसके सब कंपोनेंट्स में क्या क्या होगा? उसमें हो जाएगा कि प्रोडक्ट्स हो जाएगा, एक तो एक हम्म। कार्ट हो जाएगी, एक हम्म। पेमेंट हो जाएगी। हाँ, तो वो तो आपके डेटाबेस से कनेक्टेड होंगे हाँ, टू वो एन डेटाबेस से इंटरफेस। कनेक्ट कर जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे डिलीवरी से कनेक्ट कर देंगे उसको। हाँ, बस, यही हो राइट। जाएगा, क्योंकि हाँ, यस। बिकॉज हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें सिर्फ कंपोनेंट शो, मतलब कंपोनेंट शो करने हैं। यस। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें, आई डोंट नो यहाँ पे कोई दिया होगा कि नहीं, जस्ट चेकिंग। तो एग्जाम्पल तौर पे तो हम कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं, या जो यहाँ हाँ, पे, यस। पर हमें ओवरऑल सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ यूजर और नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम एन एडमिन। यस। हमें एक ओवरऑल व्यू देना है कि ये कंपोनेंट्स होंगे और ये ऐसे कनेक्टेड होंगे, यस क्योंकि हमें फिजिकल कनेक्शन दिखाना है ना। जी। ये तो साइट ही नहीं खुल रही है इसकी। ऑर्डर मैनेजमेंट, ये क्या दिखा रहा है? मेरा शायद इंटरनेट स्लो चल रहा है। हाँ, यहाँ पे अब इसमें इन्होंने क्या दिखाया है कि देयर इज अ कस्टमर सर्विस कंपोनेंट, मतलब जो कस्टमर कम्युनिकेट कर रहा होगा, राइट, व्हाटएवर। यहाँ पे शिपिंग कंपोनेंट है, ये एनालिटिक्स कंपोनेंट है, ये ऑर्डर प्रोसेसर है, और यहाँ पे स्टोर फ्रंट है, इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो जो ऑर्डर करेगा वो तो कस्टमर करेगा, कस्टमर का काम है सर्विस जो भी है, राइट। और यस। कस्टमर का जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर प्रोसेसर पे जाएगा, ऑर्डर प्रोसेसर स्टोर फ्रंट से चेक करेगा वेदर ऑर्डर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, राइट, आइटम की, या डिलीवरेबल है कि नहीं है। तो स्टोर फ्रंट जो भी है वो अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद वो शिपिंग ऑर्डर पे शिपिंग कंपोनेंट को दे देगा, इट इज अवेलेबल, एंड देन
और एनालिटिक्स का क्या है कि एनालिटिक्स क्यों इन्होंने ऐड किया है, कोई सोच सकता है? कस्टमर कैन आल्सो व्यू द आइटम्स थ्रू दिस स्टोर कंपोनेंट, yes. प्रोडक्ट देख सकता है वो स्टोर कंपोनेंट के थ्रू ही। और ये एनालिटिक्स क्यों ऐड किया है? जैसे आजकल आपको पता ही है, आपने अगर एक आइटम खरीदा है तो आपको रिव्यू आ जाता है ना कि Yes, आप ये ma'am. भी आइटम खरीद सकते हो, हाँ. राइट? तो वो उसके लिए उन्होंने एनालिटिक्स कंपोनेंट भी ऐड कर दिया है कि अगर हमें एनालाइज करना है कि ये कस्टमर ने किस तरह के आइटम्स खरीदे हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, समथिंग लाइक कौन दैट। से आइटम ज्यादा बिक रहे हैं, कौन से आइटम कम बिक रहे हैं, ये सब हाँ, उसमें तो analytics ये भी कर सकते हो। तो वो एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये एक एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी सही है, गलत नहीं है, में। Yes, इट ma'am. इज ऑल्सो ओके। तो ये एक है, ये तो खुल नहीं रहा है, नहीं खुला। तो ये दूसरा एक और बनाया है, इसमें क्या है, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है कंपोनेंट, जिसके अंदर प्रोडक्ट है, पेमेंट है, कस्टमर है, ऑर्डर है, कंफर्म है, और ये डेटाबेस से कनेक्टेड है ये, और एक सिक्योरिटी कंपोनेंट भी बनाया है इन्होंने। हम्म, तो ये तो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में आप प्रोडक्ट, पेमेंट, ऑर्डर और कंफर्म, ये आप इसके अंदर डाल सकते हो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में, सब कंपोनेंट्स ऑफ दिस, yes. राइट? एंड कस्टमर विल नॉट बी इनसाइड दिस, कस्टमर विल बी आउटसाइड, कस्टमर component, it should not be inside order management system, right? Or it will be connected to persistent months or permanent data, so you don't require to give persistent, just say database. And you can also have a security component also apart from the database, security will manage the access and all that thing, वो भी कर सकते हो आप चाहो तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा, राइट? Yes, ma'am. तो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में आपका एक प्रोडक्ट का कंपोनेंट तो होगा ही, जिसमें सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स, प्रोडक्ट वगैरह वगैरह होगा, राइट? हम्म, एक पेमेंट का कंपोनेंट होगा, जो पेमेंट गेटवे से पेमेंट होगी या जो भी होगा। एक ऑर्डर का होगा, जिसमें सारे जितने भी ऑर्डर कस्टमर दे रहा है वो ऑर्डर यहाँ पे डिटेल्स हो जाती हैं। और कंफर्म का ऑर्डर होगा, कंपोनेंट होगा, जो कंफर्म हो गया, डिलीवरी कर सकते हो, कंफर्मेशन एंड शिपिंग कर सकते हो इसको, कंफर्मेशन की जगह शिपिंग का मॉड्यूल बना सकते हो इसको, yes. राइट? Yes, ma'am. और कस्टमर आउटसाइड होगा इस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के। So this kind of a system can also be made. So this is what component diagram is, हम्म, right? This is what component diagram is. तो component diagram का main मकसद जो हमने पढ़ा है वो क्या है? It is to show the physical components in a system, how they have been organized, और yes, उनका relationship उन components का क्या है, yes, right? So basically they are generally software components yes. which we are showing. That is your component diagram. Now the next diagram, which is the last diagram, is your deployment diagram. अब डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होता है? टू एड्रेस द स्टैटिक डिप्लॉयमेंट व्यू ऑफ आर्किटेक्चर वी यूज द डिप्लॉयमेंट डायग्राम। अब डिप्लॉयमेंट डायग्राम बेसिकली आपको सिस्टम, मतलब आप क्या क्या सिस्टम लगाओगे, जैसे सर्वर लगाओगे, प्रिंटर लगाओगे, जो आपके सिस्टम को रन करने में मदद करेगा। कैन यू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, राइट? राउटर लगाओगे फॉर इंटरनेट, या आप वेब सर्वर लगाओगे, कैन यू अंडरस्टैंड दैट? द हार्डवेयर कंपोनेंट्स वो डिप्लॉयमेंट डायग्राम शो करता है। Deployment diagrams are related to component diagram in which a node typically encloses one or more components. So suppose आपका सर्वर है, तो सर्वर जो आपका वेब सर्वर है, उस वेब सर्वर के अंदर आपका ये कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो कंपोनेंट डायग्राम में जो कंपोनेंट्स बनाए हैं, वो उसके उस वेब सर्वर के अंदर इंस्टॉल हुए होंगे ना, उस वेब सर्वर के अंदर डले हुए होंगे, right? So deployment diagram are used during the development of the system. In this diagram we use to indicate the physical collection of nodes that serve as the platform for execution of our system. So before execution, developed components of a software system must be deployed on some set of hardware.
So deployment diagram represents the configuration of runtime processing nodes and the components that live on them. So deployment diagram consists of nodes and their relationship, where a node may consist of one or more artifacts. Artifacts means the components. This diagram helps us in the allocation of artifacts to nodes in the physical design of a system. तो हम artifact क्या होता है? Artifact represent physical entity that is used in software design. तो your component or डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, डीएलएल फाइल, और जो भी आपके कंपोनेंट हो सकता है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, डीएलएल फाइल, जो भी होगा वो आपके आर्टिफैक्ट्स हैं. वो कंपोनेंट आप इस वेब पेज, वेब सर्वर में डाल रहे हो या जो भी डाल रहे हो, ये भी आप शो कर सकते हो. एक नोड होता है. नोड इज जस्ट लाइक अ हार्डवेयर डिवाइस, right? Like a component is an important building block in modeling the physical aspect of a system. So node can be a server, can be a device, a customer computer, a device. It can be anything. So a device is a piece of hardware incapable of executing program. At the same time, the execution environment is software that provides the deployment of so the software will be installed and you can work on the node. So node is just like this, right? Then you have connections, so you can show it like this. Connect communication is required among nodes in the deployment diagram. So nodes communicate with each other via messages and signals through a communication path indicated by a solid line like this. So this line is known as connection. It represents the communication path used by the hardware to communicate with nodes. So this is there, right? Like here, this is a web server, this is a client console, and this is a application server. The application server is connected to TCP IP, and with the port, the web server is connected to client console through a port, something like that. Right. So, like for example, for the banking management system, they have made a deployment diagram. So this is your application server, right? Inside the application server, your bank statement, fund transfer component, check transfer, all the components of the banking application will be installed on the application server. So even if you don't give the components inside a application server, you can just say your banking management system application, you can or component, only one component you can make. Don't, if you don't want to subdivide the components, you can only make that. This is your application server. This is your database server, where the database information will be there, and that database server will also be connected to multiple other servers. Also multiple database servers can also be there. So that is there. Through LAN you are connected to the database server, and through network you are connected to the other servers, right? And through client consoles or the client computers are connected to web service or whatever IP service, whatever they will be having, to the application server, right? Can you understand this? So here we are talking about the hardware part of it. Ki there will be client computers, they will be getting connected to the application server or the web server, right? And that web server will be connected to the database server, and through that they will be communicating. A hardware, right? Any doubt? No, madam. Right. So here the diagram they are asking you to draw is deployment diagram for online student management system. Student admission system, sorry. Online student admission system, did the in the deployment diagram, what all components you require? That means what all nodes. One is an application server or web server, right? Inside the web server will be the online student admission system component, right? Yes or no? And you will have client computers, that is students who will be accessing the web server. Client computers will be there, or client nodes will be there, right? They will be accessing the web server. A web server will be connected to the database server. Yes or no? Yes or no in this? So a deployment diagram, if we have to draw, so in a deployment diagram you have nodes like this.
So suppose this is an app, your web server. Right, in a web server, if this is your web server, so you can create a web server, and you can have you can either create multiple components, or you can create only one component also. uh, so inside this we are creating a component which is online student admission. I'm only creating one component, I'm not dividing it. Student admission system. Right, this component I have created. So this is the component on the web server, right? And this web server is connected to an associated node you can connect, right? So that will be your, this is your database server. This is your database server. So this is connected to the database server, right? So here you can either you can provide here link, whatever link you can say, and here you can also write no. You can say through LAN we have connected, or WAN, LAN, WAN, whatever you want to write it. And you also have a node, client console nodes, or the client nodes, or the student node, you can say. These are the client nodes. So clients will be connecting to the web server, right? So we can make an association here. Why is it not? So we can make a connection here. Not stopping here. So I'm making a through an interface. We are connecting it to this. Okay, this is note. So this way we have connected through an interface. You can connect, right? Just hold on for a second.
मिडिल में स्टॉप नहीं करेंगे. Sorry. So, what were we? So we are connected it to the interface to the web server, the client console, and we have a database. This kind of a thing you can make in a deployment diagram. Mhm. You can add more things if you want, another application or another servers if you want, or Madam, just madam, how to connect interface between two components? Please demonstrate that. interface between two components means what? And this interface ball and socket, how to connect between two components? That will be in a component diagram, right? Yes. Here I have created that. That is your wish if you want to create that, No, right? how it is How I have connected? taken it from here. See, here it is Yes, an that, interface. right. I have connected it to the client console client here, Yes. right? That is the way you can connect it. You can also have it from here also. You can connect this a component also. You can connect from here also. You can connect it, Okay, okay, okay. or you can select it from here also if you want. Mhm. So I have connected this. This one I have taken association, Okay, interface okay, association. If you want, okay, okay, okay. right? This is how they you can show a deployment diagram. This is for student admission system. So you have nodes. You can have artifacts also, any DLL file or anything, but we are not taking that. You can have a component inside a node. So that is your this component which is installed on the web server. You can have a database server attached, right? So web server is one thing. You the so I in on the web server, a web server will contain what? What is an application server and what is a web server? Can anybody understand that? There can be three things: a database server, a web server, and an application server. किसी को पता है तीनों में क्या मतलब है तीनों का? वो भी हो सकता है. Uh, एप्लीकेशन सर्वर में क्या होगा? आपका आपकी एप्लीकेशन जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया वो इंस्टॉल होगा, right. ठीक है? Yes. और वेब सर्वर में क्या होगा? वेब सर्वर में जितने भी जो क्लाइंट्स ऐड अप होंगे उनका थ्रू वो उनके थ्रू कनेक्ट करेंगे. ठीक है, अगर ये भी हो सकता है. और आपके डिफरेंट वेब सर्वर्स है ना अवेलेबल, अपाची और कौन कौन से वेब सर्वर्स हैं? IIS, राइट? राइट. तो वो आप इस पे इंस्टॉल करोगे वेब सर्वर्स पे, और फिर आपका एक एप्लीकेशन सर्वर होगा जिसपे आपकी एक्चुअल एप्लीकेशन होगी, और फिर वो डेटाबेस से कनेक्टेड होगा. जी. तो 3 सर्वर भी हो सकते हैं. ओके. तो वो भी आप बना सकते हो. मतलब जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू, राइट? अगर हम इसी चीज को अगर हम इंटरनेट पे सर्च करें, अब अगर डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाना हो हमें, ये तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है इसमें. So in this, what diagram they have drawn? This is a diagram they have drawn. So what they have done is admin device उन्होंने लिया है. क्लाइंट, जैसे हमने क्लाइंट कंसोल लेना है ना,
You can say student device is student or staff device is this, and this is admin device, this is admin node, this is student node. इन्होंने ऐसे भी लिया हुआ है. You can take that. So through internet you can connect. So these both need not to be connected. Admin device और student device ये दोनों आपस में connection इनका जरूरी नहीं है. Admin device can connect to the student management system node or the server, web server, right? Or application server, right? और ये online web server है आपका. Can you see that? Right? ये आपका वेब सर्वर है, ये आपका एप्लीकेशन सर्वर है और ये आपका डेटाबेस है. हाँ ठीक है. तो ये आपके टीसीपी आईपी या जो भी इंटरनेट कनेक्शन है उसके थ्रू ये इसको कनेक्ट कर रहे हैं. कनेक्टेड है. मैडम मैंने भी ना एक वो वाला ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम का कंपोनेंट डायग्राम बनाया. आपको दिखा सकता हूँ. हाँ एक मिनट मैं स्टॉप कर रही हूँ, आप शो करो. आप स्क्रीन देख पा रहे हो मैडम? हाँ जी हाँ जी. ये मैंने बनाया कस्टमर, हम्म ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ये प्रोडक्ट स्टोर, ये शॉपिंग कार्ट, ये पेमेंट डेटाबेस, ये क्लास, ये पेमेंट डेटाबेस नहीं बोलोगे, पेमेंट का गेटवे बोल सकते हो, डेटाबेस नहीं होगा पेमेंट का. मतलब इसमें मैंने पेमेंट डेटाबेस और गेटवे सभी डाल दिया ना, ऐसे दिखाया. चलो पेमेंट ठीक से है, रिलेटेड तो जितना भी डेटाबेस नहीं बोलोगे आप. पेमेंट गेटवे बोल सकते हो, पेमेंट सिस्टम बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो, बट पेमेंट डेटाबेस नहीं बोलोगे, क्योंकि पेमेंट का डेटाबेस अलग नहीं बनता है. वो आपके इसी में ऑर्डर में ही उसका डेटाबेस, जो भी डेटाबेस बना हुआ है उसी में ही रहेगा तो ये इन्फॉर्मेशन. पेमेंट सिस्टम्स हो गया. इसको फिर इंटरफेस शिपिंग से कनेक्ट कर दिया. ये शॉपिंग डेटाबेस हो गया, इसको कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ से डिलीवरी से कनेक्ट करके यहाँ पे कस्टमर के पास दिखा दिया. हाँ ठीक है. इनको भी कनेक्ट करना है क्या, शॉपिंग डेटाबेस शिपिंग को? श्योर यस, वो तो होने ही चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, वैसे इन्फॉर्मेशन इधर से आ जाएगी आपको. हाँ यस. या पेमेंट करोगे ना तो ये ऑर्डर इन्फॉर्मेशन यहीं से चली जाएगी, तो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है उसको. एप्लीकेशन सर्वर से मतलब चली जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन. हाँ तो ये मैंने बनाया था. ठीक है. ओके. उनको पूरा डेटाबेस शिपिंग वालों को देखने की जरूरत नहीं है. हाँ वही मैंने, इसीलिए मैंने कनेक्ट नहीं किया था. हाँ ठीक है, एकदम ठीक है. ओके मैडम, थैंक यू. तो ये तो हो गए आपके जितने भी डायग्राम्स थे, जितने भी डायग्राम्स थे, these are the all diagrams, 9 diagrams. तो आपके जो 9 डायग्राम्स हैं, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम, कंपोनेंट डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये 9 डायग्राम्स हैं आपके. जो जनरल डायग्राम्स जो हम बोल रहे थे वो ये 9 डायग्राम्स हैं. अगर हम शुरू में जाएंगे इसके, तो यही 9 डायग्राम्स आपको यहाँ दिए हुए थे. ये 9 डायग्राम्स, राइट. अब ये 9 डायग्राम्स में क्लास डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम और यूज केस डायग्राम किस तरह के डायग्राम है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स इन योर ऑब्जेक्ट और यूएमएल. यूएमएल के 2 तरह के डायग्राम है. एक है स्ट्रक्चरल डायग्राम, जिसको स्टैटिक डायग्राम भी बोलते हैं. एक है बिहेवियरल और डायनेमिक डायग्राम. यस यस. तो ये किस तरह के डायग्राम है? ये स्ट्रक्चरल डायग्राम होता है. अब आते हैं सीक्वेंस, कोलैबोरेशन, स्टेट चार्ट, एक्टिविटी, ये किस तरह के डायग्राम है? बिहेवियरल डायग्राम. और कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट किस तरह के डायग्राम है? इसमें क्या आई थिंक कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट के दोनों ही स्ट्रक्चरल डायग्राम है. हाँ क्योंकि इसमें, वैसे इसमें बिहेवियर, डायनेमिक बिहेवियर नहीं बता रहे हैं. ओके. These are only structural diagram, architectural structure बता रहे हैं बस. Okay. No behavior we are showing in here. Can you understand that? Only the architecture we are showing, the structure. Okay. Component और deployment diagram दोनों structural diagrams हैं. Okay.
राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस टाइप के डायग्राम्स हैं, राइट। व्हाट वी हैव सीन। तो अब ये तो हो गया कंप्लीट आपके डायग्राम्स का पार्ट, जितना भी डायग्राम्स थे ये सारे डायग्राम्स आपके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, जो कि सेशन नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है, वो है कि जैसे आपको एक क्लास इम्प्लीमेंटेशन। डायग्राम दिया हुआ है, ये क्लास डायग्राम दिया हुआ है। यस। अब इसको आपको इस क्लास डायग्राम को सी प्लस प्लस या जावा या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? उसके लिए तो फिर राइट तो आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी क्लास बनाओगे सी प्लस प्लस में, स्कूल की क्लास बनाओगे, फैकल्टी की क्लास बनाओगे, कोर्स प्रोग्राम, स्टूडेंट सबकी क्लास। क्लासेस बनानी है। और उन क्लासेस में ये आपके एट्रीब्यूट्स ऐड एट्रीब्यूट्स हैं, करना। ये आपके फंक्शंस हैं। हम्म। ठीक है, मतलब ये ऐसे जो है ऐसे बनाना ये कि आपको ये कंप्लीट कोडिंग नहीं करनी है। ओके। कंप्लीट कोडिंग की बात नहीं हो रही है, ओनली स्ट्रक्चर यू हैव टू मेक। श्योर। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? यस। कि आपने बना दिया कि ये इसमें ये मेथड्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसे ही स्कूल का बना दिया, फैकल्टी। अब इनका जो कम्युनिकेशन है आपस में, वो उसका ये एग्रीगेशन हो रहा है, तो वो देखना है आपको किस तरह से होगा, किसका क्या मतलब, किसका ऑब्जेक्ट किसकी क्लास में रखोगे, या कैसे किस क्लास के ऑब्जेक्ट को किस क्लास में बनाओगे, वो देखना है। ओके। तो उसके लिए आपको हमें पढ़ना पड़ेगा ब्लॉक नंबर 4। आई थिंक somebody wants to ask you something, I hope so. हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी मैम, मैं प्रदीप राठी बोल रहा हूँ। मैम हाँ जी, मैं ये बोलो। पूछ रहा था, जो हमने ये टूल यूज किया है विजुअल पैराडाइम वाला, जिसके थ्रू हम हाँ ये सारे हाँ डायग्राम्स बना रहे हैं, तो हाँ। उसमें क्लास डायग्राम के अगेंस्ट हमें टेम्पलेट जनरेट करके नहीं दे सकता वो सी प्लस सेव प्लस? करके देख लो। सी प्लस प्लस में हाँ कर सकता है, वो कर ओके, सकता है, वो कर सकता है। इसमें होगा टूल, हैव टू सी कि इसमें एग्जैक्टली टूल कौन सा है। मैंने मतलब फिर अंदर का जो पार्ट है ये है वो ना हम कोड, ये है ना हाँ जी, टूल्स में कोड, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ आप जी। जनरेट कोड कर सकते हो जावा का, सी प्लस प्लस का। ओके ओके, ठीक है, ठीक है ठीक है मैम, ना, ठीक। तो आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, वो क्लास डायग्राम बना देना हम्म। पूरा का पूरा जैसे उसमें दिया हुआ था, अच्छे जनरेट कोड, सी प्लस प्लस कोड। राइट मैम, राइट राइट। राइट, तो ये है उसमें, वो हर किसी में होता है, जो स्टार यूएमएल था उसमें भी था ये तो ऑप्शन। हाँ जी, तो मैम ये सिर्फ क्लास डायग्राम को ही कोड में कन्वर्ट करके देगा ना, टेम्पलेट को, नहीं या नहीं किसी नहीं, में? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और भी है वो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, वो जो फोर्थ ब्लॉक है ना, हाँ जी, हाँ जी। जो फोर्थ ब्लॉक है आपका, उसमें इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज दी हुई हैं आपको। ओके ओके। तो कैसे वो कर रहा है, वो बताएगा आपको। दैट इज व्हाट दे आर शोइंग। तो बेसिकली इसका मेन मकसद क्या है, मैपिंग डिजाइन टू कोड। आपने डिजाइन बना दिया है ना, हम्म। डायग्राम्स और सब डिजाइन वाला वगैरह वगैरह आपका बन गया है। यूएमएल डायग्राम सच एज डिजाइन, क्लास डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम, ये सब आपने बना लिए हैं डिजाइन मॉडल में, है ना। करेक्ट। अब आपको इसको क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन भी चलो कर दी, वॉट। अब आपको उसको कोड जनरेट करना है, राइट। so that is what mapping design to code is. So it is time to use the design document to start writing code. The mapping design to code means the design classes are converted into a program code by writing statements in a programming language. अब वो programming language object oriented programming language ही होगी, right? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही यूज करेंगे ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एग्जैक्टली, या। तो वो सी प्लस प्लस कर लो, जावा कर लो, पाइथन ऑल्सो फॉलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो पाइथन भी कर सकते हो, हम्म। राइट। सो मैपिंग, अब यहाँ पे क्या है, जैसे क्रिएटिंग क्लास डेफिनेशन फ्रॉम क्लास डायग्राम। अब आपने क्लास डायग्राम बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने टीचर और स्टूडेंट क्लास है, राइट। टीचर हैज व्यू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट हैज रोल नंबर, नेम एंड गेट डिटेल्स। राइट टीचर स्टूडेंट को व्यू कर सकता है, मतलब स्टूडेंट डिटेल्स व्यू कर सकता है। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो कैसे उन्होंने कैसे किया है, एक स्टूडेंट क्लास बनाई, एक टीचर क्लास बनाई, बना दी, राइट राइट। स्टूडेंट क्लास में आपके क्या थे, एट्रीब्यूट रोल नंबर और नेम, ये बना दिया स्ट्रिंग, ये जावा में लिखा है स्ट्रिंग रोल नंबर स्ट्रिंग नेम, ठीक है। हम्म। अब इसमें हमें इसमें इन्होंने एक तो कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये पब्लिक स्टूडेंट
स्ट्रिंग रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, जिसमें हमने इनिशियलाइज कर दिए हैं रोल नंबर और नेम, राइट। ये कंस्ट्रक्टर right. है, और जो हमारा मेथड है वो क्या है, गेट डिटेल, है ना। तो पब्लिक Yes. स्ट्रिंग गेट डिटेल मेथड रिटर्न रोल नंबर प्लस नेम, रोल नंबर प्लस नेम कर देंगे, ठीक है। ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, स्टूडेंट क्लास। अब टीचर क्लास में हमने क्लास टीचर बनाया, और और इसमें बस इसमें एक व्यू फंक्शन व्यू बनाया स्टूडेंट का पब्लिक फंक्शन वॉइड बना व्यू दिया, स्टूडेंट, ठीक है, राइट। ठीक है। सिंपल एज दैट, मतलब एक स्ट्रक्चर बना के बताया हमने। ये मैम ये पूछना था, जैसे जो गेट डिटेल वाला है स्टूडेंट के हाँ अंदर, हाँ इसमें जैसे रिटर्न टाइप इसमें स्ट्रिंग दी हुई है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट डिटेल, है ना, हाँ हाँ नीचे वाले मेथड में। हाँ लेकिन हम हाँ। क्लास डायग्राम में अगर देखते हैं तो वहां तो ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, है ना। नहीं, आप अपने वो क्लास डायग्राम में अगर वो, तो ये तो इन्होंने एग्जांपल दिया है ना, आपके क्लास डायग्राम में अगर रोल नंबर इंटीजर है, रोल या ओके, तो वो काइंड ऑफ तो एक वो आप टेम्पलेट अपने जनरेट तरीके करके से दे देगा, देखना ना। हाँ टेम्पलेट जनरेट कर देगा, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसको हाँ, आगे वो अपने एनहेंस कर अकॉर्डिंग लेते हैं। आपने देखना है। हाँ जी, हाँ इट्स जी, जस्ट एन एग्जांपल, राइट। करेक्ट। तो इस तरह से आप कोड में कन्वर्ट करते हो। अगर आप मुझे इसका रिलेशन, अब क्योंकि बीच में इनके रिलेशनशिप भी है, ये यस। लाइन एसोसिएशन जो है, तो अब इस इन्होंने क्या किया, पूरा इन्होंने इंपोर्ट जावा, मतलब सब फाइल इंक्लूड कर ली, कंप्लीट पब्लिक क्लास एग्जांपल जो इन्होंने लिया है वो, मतलब ये बेसिकली मेन है इनका, कह लो। कंप्लीट प्रोग्राम बना दिया इसमें हाँ, तो। कंप्लीट प्रोग्राम बनाया, ये मेन है। हम्म, पब्लिक क्लास एग्जांपल ये मेन है इनका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टूडेंट S1, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टूडेंट yes, क्लास का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे उसके पैरामीटर्स पास कर दिए स्टूडेंट के, जो कि यहाँ पे चले जाएंगे क्लास के अंदर। यही थी ना स्टूडेंट क्लास आपकी ये। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें यहाँ पैरामीटर्स, यहाँ कंस्ट्रक्टर कैच कर लेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, यस, राइट। तो रोल नंबर विल बी इक्वल टू S123, नेम विल बी XYZ, करेक्ट। right. And what will, if we call get detail, so it will print S123 XYZ roll number and name, ओके, right. ठीक है Generally मैम। it on this, जी मैम। according to this। फिर टीचर जो दूसरी क्लास थी उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया T1। अब न्यू टीचर, तो T1 ये टीचर का है। अब टीचर में देखो क्या किया है, जो हमारा फंक्शन था टीचर का वो था व्यू स्टूडेंट, है ना। यस, अब उस फंक्शन में हमने क्या क्या पैरामीटर पास करा है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ही पास कर स्टूडेंट दिया। क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है, हाँ जी, स्टूडेंट S। यानी जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये कहाँ पास हो जाएंगे, फंक्शन के अंदर राइट। चले। हाँ तो जी, ये इस फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर को इनपुट करा रही हूँ। कहाँ से करा रही हूँ इनपुट, यूजर से। हम्म। यूजर ने डाला, सपोज उसने S123 डाला, सपोज। तो राइट, इफ रोल गेट रोल नंबर डॉट इक्वल्स S डॉट रोल नंबर, यानी जो जो ऑब्जेक्ट जो हमने स्टूडेंट क्लास का बनाया है उस रोल नंबर से जो हमने रोल नंबर गेट किया है वो इक्वल है दोनों, तभी right, डिटेल्स then आएंगे। it will print the S dot get detail function, the roll number and name of that student, करेक्ट। right. This is how they have made। तो ये आपका एसोसिएशन बन गया ना, ये ऑब्जेक्ट जो आपने पास किया इस फंक्शन को टीचर के, तो दे इट इज एसोसिएटेड नाउ ना। राइट, राइट, राइट। तो आप डिटेल्स उसकी गेट कर पा रहे हो इससे। तो दिस इज हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, राइट। Then करेक्ट। another thing is implementing associations like link and association in UML। तो ये association को कैसे आप implement कर रहे हो वो बता रहा है। तो the association can be unidirectional or bidirectional। करेक्ट। One unidirectional is one, मतलब one way, bidirectional is both ways, right। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैनेजर, बैंक और अकाउंट है, राइट। ये वर्क मैनेजर वर्क्स फॉर द बैंक, right, and manager manages the accounts, right। तो banks have many accounts, something like that। तो इस तरह के एसोसिएशंस को आप कैसे डिफाइन करोगे, मतलब किस तरह से इंप्लीमेंट करोगे। जैसे कि मैनेजर एंड बैंक, मैनेजर वर्क्स फॉर द बैंक,
Correct. So what kind of association this is? If there are one to many relationship, then multiple pointers are used for implementation, implementing unidirectional और one way association. तो आपको pointers, multiple pointers का use करना पड़ेगा. तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि multiple set of employees होंगे, right? In a bank. उसमें से एक कोई मैनेजर बनेगा किसी ब्रांच का या जो भी होगा. Correct. राइट, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो आपको अगर यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि मैनेजर वर्क्स फॉर द बैंक, तो एक तरफ का डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल है, तो आपको पॉइंटर्स, सेट ऑफ पॉइंटर्स का यूज करना पड़ेगा फॉर कनेक्टिंग. अगर वन टू मेनी है तो, वन टू वन है तो दिक्कत नहीं है. तो ऐसे ही बाय डायरेक्शनल का भी आप देखें, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ बाय डायरेक्शनल एसोसिएशन ऐसे पॉइंट, सॉरी बाय डायरेक्शनल में आपको पॉइंटर्स का यूज करना पड़ेगा. दोनों वे आपका कम्युनिकेशन होगा, दोनों वे कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें. तो इस तरह से दिखाया है इन्होंने, इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाया, बस आपको बता रहे हैं वो कि किस तरह से कर सकते हो. तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन यूनिडायरेक्शनल का वन टू वन एसोसिएशन का यहाँ पे बता रहा है. जैसे पर्सन एंड क्रेडिट कार्ड, अ पर्सन मे और मे नॉट हैव अ क्रेडिट कार्ड, राइट? Right. सिंगल क्रेडिट कार्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? तो यहाँ पे क्लास पब्लिक क्लास पर्सन बनाई, राइट? Correct. और यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड की भी एक क्लास होगी. तो एक क्रेडिट कार्ड की क्लास है, एक पर्सन क्लास है, ठीक है. अब प्राइवेट क्रेडिट कार्ड सी कार्ड, तो ये क्या किया है इन्होंने, क्रेडिट कार्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया. किसके अंदर? पर्सन क्लास के अंदर, Person के अंदर. ठीक है. फिर कहा पब्लिक क्रेडिट कार्ड गेट कार्ड, तो इसके अंदर ये क्रेडिट कार्ड क्या कोई ऑपरेशन होगा, गेट कार्ड. कैन यू अंडरस्टैंड दैट? कोई ऑपरेशन होगा, ये गेट कार्ड मतलब गेट डिटेल्स ऑफ द कार्ड. जो इंसर्ट करेगा था उसको मिल जाएगी वो इन्फॉर्मेशन. हाँ, तो क्रेडिट कार्ड से ही वो क्रेडिट कार्ड जो ये आपका, ये वैसे ऐसे नहीं कॉल होना चाहिए था, ये होना चाहिए था सी कार्ड डॉट गेट कार्ड. तो वो उसके अंदर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ और द सी कार्ड, द क्रेडिट कार्ड, एक्चुअल क्रेडिट कार्ड, वॉट एवर इट इज, द डिटेल्स. Madam, हाँ जी. will it be required to write this code in a platform, software platform? That is your wish. If you are conversant with C++, you can write in C++. If you are conversant with Java, you can write in Java. For the lab record, I'm talking, madam. What? For the lab record? For the lab record, that's what I'm saying. Any language you can use, whichever you are conversant with. Any screenshot is required or not, or simply we can just template, you can make it and put it out. You can make a template and show it in the lab records. Okay. Yeah. Then public void set card, credit card. Again, they are making a object of the card, and they are saying C card is equal to card. So they are setting the card, and public void remove card. So this C card is equal to null, so that card will be removed. So something like that they have made in the person class. This is an optional association, may or may not. Optional means what? You can have a credit card, or you may not have a credit card, right? Choice it is. It is your choice. So this is how they have made it. In one-to-one association, like here, one clock and one display. Yes. So a clock will have a single display. So a clock class is there, display class is there. So here class clock, private display. So this is the object they have created for the display class, and there will be a display class also. And accordingly, you can call the function of the class, right? Again, it is a unidirectional from clock to display. मैम ये जो क्रेडिट कार्ड वाला फॉर एग्जांपल था, इसके अंदर ये वन टू मैनी का था ना केस? नहीं, वन टू वन, ऑप्शनल एसोसिएशन, मे और मे नॉट. ओके. तो इसमें कार्ड या तो होगा या नहीं होगा, मतलब होगा तो सिंगल कार्ड ही होगा, राइट? हाँ, ठीक है. और ये वन टू वन है जी. ठीक है. और यहाँ जैसे पर्सन और अकाउंट, अगेन यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन, वन पर्सन कैन हैव वन अकाउंट.
right? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. That kind of a thing. Like here they have created public class person, private account. So this the account class will be there. Here they have created the account class object. Public person, this is the constructor they have created. Account is equal to new account, right? So this object they are creating inside the what? Inside the person class, account object, inside the person constructor. Public account get detail. So this is the function they are calling from the account class, and they are returning the account information. Something like that they have made, right? Right. So this is unidirectional, one to one, and optional association. But अगर multiplicity होगा, multiplicity means many, one to many, Ma'am. right? Like one teacher teaches many students, Yes. right? So here public class teacher will be there. Here they are using a vector. Why Metric system. vector? Because many students will be there, right? So student object, vector student object, they are saying public void add student. So add student is they are taking, they have not mentioned here, but add student they are taking student, and student object they are passing to add student. Student object dot add element student. So here you are adding a student. There will be a here only they have given a view student. You can also have a method called add student. So here the teacher is adding the student, right? The details will be getting from the here, and that is added by the teacher. Public void remove student. The students are also removed accordingly. Also, you can remove the student also. So this kind of a thing. So here they are using a vector. Either you can use pointers or you can use vectors. So in Java they are using vectors for many, representing many students. तो ये वन टू मेनी का एसोसिएशन है. फिर बाय डायरेक्शनल इम्प्लीमेंटेशन है. अभी तक जो हम कर रहे थे वो यूनी डायरेक्शनल था, वन वे, राइट? अब है मेनी, मतलब बाय डायरेक्शनल बोथ वे. तो बाय डायरेक्शनल वन टू वन एंड ऑप्शनल वन टू मेनी. सो दीज आर द, तो यहाँ पे अब पर्सन टू अकाउंट, अकाउंट टू पर्सन, दोनों तरीके से हो सकता है. वन टू वन एंड ऑप्शनल एसोसिएशन, मतलब वन पर्सन कैन हैव नो अकाउंट और कैन हैव एन अकाउंट, or account, one account can have one person, something like that, both ways. तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, पब्लिक क्लास पर्सन बनाया और पब्लिक क्लास अकाउंट बनाया, दोनों बनाए. तो प्राइवेट अकाउंट इसमें एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना दिया है और अकाउंट क्लास में पर्सन का ऑब्जेक्ट बना दिया है. कैन यू सी दैट? पर्सन क्लास में अकाउंट का ऑब्जेक्ट है, अकाउंट क्लास में पर्सन का ऑब्जेक्ट है. जॉइंट अकाउंट के केस में ऐसा हो सकता होगा. हाँ, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों वे कम्युनिकेशन करना है ना. हाँ, बाय डायरेक्शनल. यस, इसलिए हमने ये किया है. ठीक है. फिर पब्लिक पर्सन, यहाँ पे अकाउंट इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया. पब्लिक अकाउंट गेट डिटेल, गेट अकाउंट, तो यहाँ रिटर्न कर रहा है अकाउंट इन्फॉर्मेशन. और यहाँ पे पब्लिक अकाउंट पर्सन पास कर दिया, और दिस पर्सन इज इक्वल टू पर्सन, या पर्सन की डिटेल अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी. पब्लिक पर्सन गेट पर्सन रिटर्न पर्सन. ये पर्सन का चीज लेके यहाँ पर्सन का इन्फॉर्मेशन जा रहा है, यहाँ से पर्सन का, यहाँ से अकाउंट का, दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है. दिस इज बाय डायरेक्शनल, राइट? तो ऐसे ही वन टू मेनी भी बताया. पर्सन टू, अ पर्सन कैन हैव मेनी अकाउंट्स, यस, एंड आल्सो बाय डायरेक्शनल. तो यहाँ पे क्या किया, पब्लिक क्लास अकाउंट है, पब्लिक क्लास पर्सन है, राइट? तो प्राइवेट पर्सन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना दिया. यहाँ पे प्राइवेट सेट अकाउंट. अब सेट अकाउंट क्यों किया हमने? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स की बात हो रही है अब यहाँ पे, मेनी अकाउंट्स. सेट का हम वेक्टर का यूज नहीं कर रहे, सेट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे सेट पर्सन न्यू पर्सन. इफ यहाँ पे हम पर्सन का इफ पर्सन इज नॉट इक्वल टू न्यू पर्सन ओल्ड पर्सन इज इक्वल टू न्यू पर्सन इज इक्वल. तो यहाँ पे हम सेटिंग कर रहे हैं
कोई अगर पर्सन है, कोई एक नया पर्सन हमने लिया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पर्सन का, और हम चेक कर रहे हैं कि प्रीवियस पर्सन इज नॉट इक्वल टू द न्यू, मतलब पहले कोई एक पर्सन का वैल्यू होगा, उस वो इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द न्यू पर्सन वैल्यू, देन जो ओल्ड पर्सन है वही न्यू पर्सन है। पर्सन ही है, ओल्ड पर्सन तो नहीं है, पर्सन इज इक्वल टू न्यू पर्सन कर देंगे हम, उसको नए पे चढ़ा देंगे, ठीक है। एंड इफ न्यू पर्सन इज नॉट इक्वल टू नल, और अगर वो नल नहीं है नया पर्सन, देन न्यू पर्सन डॉट ऐड अकाउंट, अकाउंट ऐड कर देंगे इस न्यू पर्सन का। एंड इफ ओल्ड पर्सन इज नॉट इक्वल टू नल, देन ओल्ड पर्सन डॉट रिमूव अकाउंट, और ओल्ड पर्सन अगर नल नहीं है तो हम उस ओल्ड पर्सन का अकाउंट रिमूव कर देंगे और नए पर्सन में हमने चढ़ा दिया, ऐड कर दिया। तो ये तो अकाउंट क्लास में किया। पर्सन क्लास में हमने सेट अकाउंट किया, पब्लिक पर्सन अकाउंट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, यहाँ हैश फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक वॉइड ऐड अकाउंट, अब यहाँ पे अकाउंट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अकाउंट डॉट ऐड अकाउंट, अकाउंट डॉट एसी डॉट मतलब ऑब्जेक्ट डॉट सेट पर्सन दिस, तो उस पर्सन को हम जो भी हम यहाँ पे पर्सन हम सेट कर रहे हैं वो पर्सन को ये अकाउंट ऐड करवा देंगे। एंड पब्लिक वॉइड रिमूव अकाउंट, तो यहाँ पे अकाउंट को रिमूव करवा रहे हैं इफ सेट पर्सन इज नल। यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं अगर सेट पर्सन नल है तो ये रिमूव कर देगा। तो ये टू वे एसोसिएशन हो रहा है और वन टू मेनी, बाई डायरेक्शनल वन टू मेनी एसोसिएशन, और यहाँ पे हम सेट्स का यूज कर रहे हैं, हैश फंक्शन का यूज कर रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पे इम्यूटेबल एसोसिएशन की भी बात हो रही है। तो इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? अनचेंजेबल ऑब्जेक्ट, and its state is modified after it is created, whereas multiple objects are changeable objects which can be modified after their creation, right? So whereas mutable objects are changeable objects and which can be modified after their creation, immutable objects are inherently thread safe and offer higher security than mutable objects. Associations are immutable data structure. तो वो कह रहे हैं association जो होती है वो immutable data structure है, change नहीं हो सकती, after creation it cannot be modified. So this means that they carry no state and a copy of an association is another complexity independent association. तो यहाँ immutable की बात कर रहा है वो, यहाँ पे अकाउंट और डेबिट कार्ड। It is assumed that there is a restriction for the debit card. It cannot be issued to person per account. Yes. Right? तो इसलिए यहाँ पे immutable association हो गया ना ये। Yes. तो पब्लिक क्लास अकाउंट है और पब्लिक क्लास डेबिट कार्ड है, राइट। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑब्जेक्ट लिया है और पब्लिक कार्ड अकाउंट में डेबिट कार्ड का ये ऑब्जेक्ट को पास किया है और इसको इसके इक्वल रख दिया है इस वेरिएबल के। देन पब्लिक डेबिट कार्ड गेट डेबिट कार्ड डिटेल्स, तो ये डेबिट कार्ड डिटेल्स रिटर्न हो रही है यहाँ से। और प्राइवेट अकाउंट यहाँ पे भी एक वेरिएबल क्रिएट किया है और वो पास किया है इस डेबिट कार्ड वाले फंक्शन में। जस्ट स्ट्रक्चर उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे वही है, हो तो ये हो रहा है वन टू वन एसोसिएशन, दोनों में हमने बाय डायरेक्शनल वन टू वन एसोसिएशन, बट इम्यूटेबल है, कैनॉट चेंज, राइट। दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर दे हैव क्रिएटेड। तो ये आपके इसने ये सब आपको बता रहा है इन दिस हाउ टू इम्प्लीमेंट इट in your programming language, right? जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो अब हम बात करेंगे जो कोलैबोरेशन डायग्राम है ना आपका, yes. उसमें से हम मेथड्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो जब हम करेंगे, आई डोंट नो वो वाला चैप्टर अभी खुला नहीं है। हाँ, ये वाला जैसे यहाँ पे कोलैबोरेशन डायग्राम की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये देख रहे हो आप, ये कोलैबोरेशन डायग्राम ऐसे होता है ना, मैसेज पासिंग, वन ये हुआ, टू ये हुआ, थ्री ये हुआ, राइट। तो इसमें ये जो चीजें हो रही है ना, दीज आर द मेथड्स। यस, रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट, चेक बैलेंस, अकाउंट अवेलेबल। तो ये सब मेथड्स आप कैसे निकालोगे वो ये जैसे यहाँ पे ये मैसेज पासिंग के थ्रू चलता है। तो इफ, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इफ a is greater than b,
कंडीशन ऑब्जेक्ट बी डॉट मैसेज 1 प्रिंट होगा, राइट। अगर हम एल्स ऑब्जेक्ट 2 डॉट मैसेज सी प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट सी को प्रिंट होगा मैसेज 2, ऑब्जेक्ट सी डॉट मैसेज 2। तो जैसे यहाँ पे बोला लेट अस कंसीडर अ कोलैबोरेशन डायग्राम फॉर एटीएम ट्रांजैक्शन, ठीक है। पहले हम उसका यूज केस देखते हैं कि कस्टमर कैन इंसर्ट एटीएम कार्ड इनटू द कार्ड रीडर ऑफ द एटीएम कंसोल। The card reader reads and verifies the card. ATM console displays a message and prompts the customer to enter PIN. Customer enters PIN. ATM console verifies PIN with bank database and confirms the PIN is valid. If PIN is invalid, ATM console notifies the customer with a message and ejects the card. If PIN is valid, ATM console represents a prompt with options such as deposit, withdraw, and transfer money. Customer selects withdraw option. ATM console presents prompt to the customer for an accurate amount to be withdrawn. The customer enters the amount. ATM console verifies with the bank database whether the customer account has sufficient funds. Otherwise, it shows an insufficient fund message. ATM console deducts money from the customer's account, puts the requested amount in cash dispenser and prints a receipt. And ATM console rejects the card and becomes ready for another transaction. ये पूरा फ्लो है इसका, यूज केस मतलब पूरा फ्लो बता दिया। अब इसको आपको इसमें आपको कम्युनिकेशन डायग्राम ये बना दिया अकॉर्डिंगली, कोलैबोरेशन डायग्राम या कम्युनिकेशन डायग्राम ऐसे बना दिया कि कस्टमर इंसर्ट वन कार्ड रीडर में इंसर्ट करेगा, कार्ड रीडर कार्ड रीड करके एटीएम कंसोल पे जाएगा, प्रॉम्प्ट करेगा कि कस्टमर पिन डाले, कस्टमर फिर पिन डालेगा, ठीक है। कस्टमर जो पिन डाल ये एंटर पिन डालेगा एटीएम कंसोल को, एटीएम कंसोल वेरीफाई करेगा डेटाबेस से पिन को, फिर अगर वो पिन वैलिड नहीं होगा तो इजेक्ट कर जाएगा कार्ड, नहीं तो पुट कैश इन द रिसीट, नहीं तो प्रॉम्प्ट करेगा ऑप्शन के लिए, नहीं तो एटीएम कंसोल विल प्रॉम्प्ट द कस्टमर फॉर द ऑप्शन, द कस्टमर सेलेक्ट्स विड्रॉ, तो विड्रॉल ऑप्शन सेलेक्ट द ऑप्शन, यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है ना, ये सेलेक्ट करेगा ऑप्शन सपोज विड्रॉल, तो वो प्रॉम्प्ट करेगा कि अमाउंट डालो एटीएम, फिर कस्टमर अमाउंट डालेगा, एंटर द अमाउंट, वेरिफिकेशन ऑफ अमाउंट, फिर वेरीफाई करेगा डेटाबेस से अमाउंट, फिर अगर अमाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो डिडक्ट कर देगा डेटाबेस में से अमाउंट, राइट। और फिर क्या करेगा वो प्रिंट ये कैश पुट करेगा कैश डिस्पेंसर में, और प्रिंट रिसिप्ट करेगा, ठीक है। यस उसके और ये आपका पूरा हो गया खत्म, राइट। यस ये कम्युनिकेशन डायग्राम बनाया। अब इसमें क्या क्या आपका देखो, क्या कस्टमर, कार्ड रीडर, एटीएम कंसोल, बैंक डेटाबेस, ये आपके क्लासेस हैं। सपोज कस्टमर, कार्ड रीडर, बैंक डेटाबेस, एटीएम कंसोल, कैश डिस्पेंसर, ये क्लासेस हैं, ठीक है। अब इन क्लासेस से रिलेटेड आपके मेथड्स क्या होंगे? कस्टमर क्या क्या कर सकता है? कस्टमर आपका पिन एंटर कर सकता है, कार्ड इंसर्ट कर सकता है, ठीक है, सेलेक्टिंग ऑप्शन, ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, एंटरिंग अमाउंट एंटर कर सकता है, राइट। सो इंसर्ट कार्ड, एंटर अमाउंट, सेलेक्ट ऑप्शन, एंटर पिन। कार्ड रीडर क्या कर सकता है? कार्ड रीडर विल ओनली रीड द कार्ड, यस, राइट। देन एटीएम कंसोल क्या क्या कर सकता है? एटीएम कंसोल वेरिफिकेशन ऑफ द पिन करेगा, प्रॉम्प्ट करेगा पिन के लिए, यस, प्रॉम्प्ट ऑप्शंस, ऑप्शन के लिए प्रॉम्प्ट करेगा अमाउंट, राइट। डिडक्ट अंडर एटीएम कंसोल। बैंक डेटाबेस क्या करता है? बैंक डेटाबेस will reject the card, yes, right. Then it deduct can amount. deduct, it can also put cash and print receipt, cash and print the receipt, right. Can you understand how methods are taken out from the communication diagram? आ रहा है समझ? तो ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना सेशन नंबर 1 में, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग क्लास डायग्राम, है ना, इसमें यूनिवर्सिटी, स्कूल, फैकल्टी ये सब दिए हुए हैं। तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है कि कैसे ये मतलब इसका क्लासेस बनेंगी।
फिर implement the class diagram of figure this, दोनों बार करना है क्या? फिगर 1.18 1.18 कहाँ होगा पता है आपको? फिगर 1.18 will be in block 1. I don't know. यूनिट 1 में ही देखना है. Introduction to OOD and design analysis tools. 1.1 नीचे मैडम वो ऑब्जेक्ट 1.2 5 यहाँ पे कहीं आएगा क्लास में. ये रही 0.11 हो गया ये तो. ऊपर चलाइए मैडम यहाँ पे यही वाली 1.5 6 नीचे 7 इसके नीचे यस स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी. यस तो ये तो सिंपल है इम्प्लीमेंट करना. स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी. और क्या था हमारा? तो ये हो गया. फिर इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग एसोसिएशन यूजिंग सी और सी प्लस प्लस. अगेन वो एसोसिएशन की बात कर रहा है. ये 0 और मेनी टू 0 और 1. और ये क्या है? इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग एसोसिएशन 1 to many. यस पर्सन एंड बैंक अकाउंट. तो वो तो आप ये वाला तो बुक से ही ले सकते हो एग्जांपल. ठीक है. और ये हम बाद में कर लेंगे. ये भी ये डेटाबेस टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है. तो ये सब क्वेश्चन उसी के ऊपर पूछे हुए. आपको ये जो मैंने अभी बताया ना कोलैबोरेशन डायग्राम वाला. यस मैम सॉरी गया वो. हाँ ये जो बताया ये आपको एक थ्योरी क्वेश्चन पेपर में आया था. ओके हाउ कोलैबोरेशन डायग्राम कन्वर्ट्स मेथड्स. मतलब हाउ इट टेक्स आउट मेथड्स फ्रॉम द कोलैबोरेशन डायग्राम. तो वो ये है एग्जांपल. आप इसी का दे सकते हो ऐसे ही. तो उसमें ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी. हाँ कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. जैसे यहाँ पे एडमिन, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम कोर्स और फैकल्टी दिया हुआ है. नहीं उसके बाद वो टेबल भी बनानी पड़ेगी. हाँ, टेबल बता के कि ऐसा एग्जांपल. अगर आपको एग्जांपल दिखाना है तो ऐसे टेबल बना के दिखा दिया कि ये आपके मेथड्स हैं. ये मेथड्स हैं. ओके तो एक थ्योरी में एक क्वेश्चन था ऐसा. राइट. तो दिस मच मतलब ये हमने किया है. अभी हम धीरे धीरे इसमें डिटेल में और जाएंगे. अब तो ये तो थोड़ा थोड़ा हम देख रहे थे ना. राइट. तो ये ब्लॉक 4 में हम ये आपको बस ये ध्यान में रखना है किस तरह इम्प्लीमेंट होगा आपका 1-to-1 एसोसिएशन, 1 to many एसोसिएशन, यूनिडायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल. उसमें कैसे इम्प्लीमेंट होगा. बस दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर कभी पूछ लिया तो रेयर में कभी 1-2 बार पूछा है. वैसे ज्यादा नहीं पूछा है इसके बारे में. राइट. तो थ्योरी में अदरवाइज तो इट इज ओके. तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. राइट. ये हम तो और भी थोड़ा देखेंगे अपना विजुअल बेसिक पैराडिग्म से. अगर हम ये डायग्राम डालते हैं नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे ये पूरा डायग्राम उसमें डालेंगे विजुअल बेसिक पैराडिग्म में. और देखते हैं उसका कोड वो क्या जनरेट करके. पता नहीं क्या जनरेट करेगा. वो तो कुछ डमी टेम्पलेट ही जनरेट करेगा. जी. राइट. तो वो हम देखेंगे वो क्या जनरेट करता है. राइट. तो आपको वैसे भी पूरी कोडिंग नहीं दिखानी होती है. आपको बस एक टेम्पलेट ही दिखाना है कि इस तरह से हम क्लासेस बनेंगी. अगर आपको पूछा भी जाए तो. राइट. पूरा कोडिंग का बात नहीं हो रही है यहाँ पे वैसे भी. राइट. तो ये सब आपके डायग्राम्स हैं और ये चीजें आपको हम कर रहे हैं फिलहाल के लिए. तो अभी कोई डाउट है किसी को या कुछ प्रॉब्लम है? व्हाटएवर वी हैड सीन अप टू नाउ. नो मैडम अभी तक तो नहीं. सो सारे डायग्राम्स का डेफिनेशन, सारे डायग्राम्स का कौन से टाइप के डायग्राम है, कौन से यूएमएल टाइप है वो डायग्राम का, वो सब आपको पता होना चाहिए. राइट. राइट मैडम. एनी डाउट इन दैट? नो मैडम. उनका एडवांटेज भी पता होना चाहिए. वो मतलब कि डेफिनेशन में तो ये पता चल जाएगा कि वो क्यों बनाए जाते हैं. पर उनका एडवांटेज भी पता होना चाहिए आपको.
तो ये तो आपको पढ़ना ही है। बाकी तो आपको बाकी चीजें तो पढ़नी ही है, जैसे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, व्हाट इज ओएमटी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स हैं आपकी, राइट? हाउ स्ट्रक्चर मॉडलिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, हाउ बोथ आर डिफरेंट। तो ये तो बेसिक चीजें जो हमने थ्योरी में पढ़ी थी वो तो पढ़नी ही है। उसके अलावा मॉड्युलैरिटी क्या होता है, कोहेशन एंड कपलिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर एसोसिएशन क्या होता है, रिलेशनशिप और एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन में एग्रीगेशन क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, राइट? ये सब चीजें आपको पढ़नी है। और डिजाइन के बारे में भी पढ़ना है, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, डिजाइन का क्या मोटिव होता है, डिजाइन के किस गुड डिजाइन के क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है? फिर डॉक्यूमेंट के बारे में भी पढ़ना है, व्हाट इज अ गुड डॉक्यूमेंट, डिजाइन डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए उसके अंदर, राइट? तो ये सब चीजें भी हैं, ब्लॉक 3 में होगा डिजाइन वगैरह के बारे में। फिर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, राइट? वी हैड सीन दैट आल्सो इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में। पर्सिस्टेंट डेटा क्या होता है, ट्रांजिएंट डेटा क्या होता है, या पर्सिस्टेंट ऑब्जेक्ट या ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट। पर्सिस्टेंट मतलब परमानेंट और ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी, राइट? तो उसके बारे में भी आ सकता है। तो थ्योरी में तो मैंने इसीलिए आपको बोला प्रीवियस 5 क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लो, और मैं जो लेटेस्ट पेपर्स है ना वो भी आपको मिल जाएंगे। लेटेस्ट पेपर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई जस्ट शो यू। आप इग्नू की वेबसाइट पे जाइए, मेन वेबसाइट पे, ठीक है? और यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज में चले जाना, ये स्टूडेंट सर्विसेज है यहाँ पे, इसके अंदर डाउनलोड्स होगा, यहाँ पे जाएंगे और डाउनलोड्स में यहाँ पे आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बिफोर दिसंबर 2024 या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम दिसंबर 2024। तो फ्रॉम पे क्लिक कर दीजिएगा, दिसंबर 2024 और जून 2025 आ जाएगा। तो सपोज जून 2025 हम मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पे सर्च में अपना कोर्स कोड डाल दीजिएगा, जैसे MCS हाइफन करके 219, तो ये आ गया है ना। इसको क्लिक करते हैं, ये खुल गया। कैन यू सी दैट? यस मैम। ये लेटेस्ट पेपर है जून 2025 का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, अटेम्प्ट एनी 3 फ्रॉम द रेस्ट। 5 क्वेश्चंस होंगे टोटल, पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है 40 मार्क्स का। तो इसमें है व्हाट इज OOAD, ब्रीफली एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ OOAD। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन OOAD? अब आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने फीचर्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ये भी पता होने चाहिए। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन OOAD, एक्सप्लेन व्हाई एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। What is UML, Unified Modeling Language? Draw hierarchy of UML diagrams। तो आपको hierarchy बतानी है, structural diagrams ये हैं और behavioral diagrams ये हैं। Can you understand? Yes, right? ma'am. वो what is inheritance? Explain the basic rules for inheritance। क्या rule है inheritance का, right? What is one-to-one association? Explain with an example. Also explain one-to-one associations are how one-to-one associations are implemented। देखो यहाँ पे implementation के बारे में पूछा है, तो कोई एक एग्जांपल ले लेना, और C में या C++ या सॉरी नॉट C इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, C++ या जावा जो भी ले लेना, और एक बस एक स्ट्रक्चर बता देना कि इस तरह से इम्प्लीमेंट किया है। समझे? यस मैम। राइट। देन सेकंड, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी था। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। व्हाट इज मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग? What is the output of object modeling? Explain how an object diagram is created with the help of an example। Object modeling क्या होती है, जिसमें हम structure of the system objects को define करते हैं। We make a class diagram and an object diagram in an object modeling। तो यहाँ पे object diagram बनाना है, एग्जाम्पल देके बताना है, कोई एक ऑब्जेक्ट डायग्राम आप बना देना, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज केस डायग्राम, या यूज केस डायग्राम के बारे में पूछा है। वेयर कैन वी यूज यूज केस डायग्राम, तो कहाँ हम यूज कर सकते हैं इसको। एक्सप्लेन इंक्लूड डिपेंडेंसी इन यूज केस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इंक्लूड डिपेंडेंसी मैंने आपको बताया था कि आप कोई इंक्लूड या एक्सटेंड भी होती है। इंक्लूड में क्या है,
कोई एक चीज, जैसे आप एडमिशन फॉर्म भर रहे हो तो उस एडमिशन फॉर्म भरने के लिए ये भी चीज आपको इंक्लूड करनी पड़ती है, तो उस तरह से इंक्लूड डिपेंडेंसी बताते हैं, राइट। और थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन एन इवेंट स्टेट एंड ट्रांजिशन। जो आपके स्टेट चार्ट डायग्राम में इवेंट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, स्टेट चार्ट डायग्राम, और एक एग्जांपल देना है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है इवेंट, स्टेट और ट्रांजिशन क्या है। व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ ड्राइंग अ कंपोनेंट डायग्राम। अभी जो हमने कंपोनेंट डायग्राम दिया, क्या पर्पस है उसका, ड्रॉ कंपोनेंट डायग्राम फॉर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का कंपोनेंट डायग्राम, जो आपके प्रैक्टिकल बुक में ऑनलाइन बैंकिंग का ही था ना वो। हाँ बैंकिंग का ही था। ये नहीं, ये एटीएम सिस्टम नहीं, ये कंपोनेंट, ATM कंपोनेंट डायग्राम नहीं है, आपकी बुक में था शायद वो, है ना। नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ कहाँ उसमें था कंपोनेंट ना। डायग्राम, इसमें वो ब्लॉक 1 में है, ब्लॉक 1 यूनिट 4 या 5 किसी में है, ब्लॉक 1 यूनिट 4 में था, नहीं यूनिट 5 है, यही था ना यूनिट 5, हाँ सॉरी ये यूनिट 5 में, ब्लॉक 1 यूनिट 5। तो इसमें जो कंपोनेंट डायग्राम, ये भी एटीएम सिस्टम का ही है। हाँ तो ठीक है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये एटीएम सिस्टम का बनाया हुआ है इन्होंने, आप उसको कन्वर्ट करके बैंकिंग सिस्टम का बना सकते हो, ठीक है। Yes. तो ये आपको दिया हुआ है उन्होंने, अगेन कंपोनेंट डायग्राम दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डीएफडी, ड्रॉ डीएफडीज अप टू सेकंड लेवल फॉर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, आल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग अ डीएफडी, राइट। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का डीएफडी बनाना है, आपने वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा था, तो वो भी आप आपकी ब्लॉक्स में दिया हुआ है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ अ डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन, वही मैंने जो बोला था, डिजाइन के बारे में भी आपको पढ़ना है, डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट, आल्सो एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ अ गुड डिजाइन डॉक्यूमेंट। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, कोलैबोरेशन डायग्राम, डेटा परसिस्टेंस, परमानेंट मतलब परमानेंट डेटा, मैपिंग ऑब्जेक्ट क्लासेस टू टेबल्स एंड क्लास डायग्राम। मैपिंग ऑब्जेक्ट क्लासेस टू टेबल्स वो हम अभी देखेंगे, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोर्थ ब्लॉक इज दैट ओनली, और क्लास डायग्राम, तो इनको आपको शॉर्ट नोट लिखना है इस पे। कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन पेपर आपका जून 2025 का है। इसी तरह आप दिसंबर 2024 भी डाउनलोड कर लो, देख लो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रोबेबली आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा काफी हद तक, Yes. राइट। तो इनको आप डाउनलोड करके प्रीवियस 5 क्वेश्चन पेपर उनको देख लो किस तरह के क्वेश्चन पेपर आपका आ रहा है, राइट। Right. सो अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पार्ट देखेंगे, दैट इज नेक्स्ट सैटरडे। अभी तो कोई डाउट नहीं है, एनी डाउट्स? No, नहीं अभी तो नहीं है। So everybody has given their attendance, name and enrollment number in the chat box. Write your name and enrollment number. Yes, ma'am. अगर कोई डाउट है तो we continue with the class, otherwise we'll end the class otherwise. Just see what all doubts you are having, what all difficulties you are having. आप next class में उसको find out करो, जो हमने पढ़ा है, क्या आपको प्रॉब्लम दिख रही है, क्या दिक्कत दिख रही है, वो सब फाइंड आउट कर लो, राइट। Yes. So everybody has put their attendance, anybody is left? दे दी मैंने आज। नहीं, जिन्होंने दे दिया ठीक है, कोई अभी भी रहता है, क्योंकि मैं कॉपी करने वाली हूँ इसीलिए पूछ रही हूँ। इसमें तो मैडम ऐसे तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ही होता है ना, ऑटोमेटिक सारी वो ले लेता है अटेंडेंस। वो तो वैसे रिकॉर्डिंग में तो रहेगा, बट फिर भी क्योंकि आजकल कुछ भरोसा नहीं रहता ना, कब किसका क्या। क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से इसी के साथ गूगल के साथ ही रहता है वो अटैच्ड शीट, हाँ, वो उसमें अटैच ही रहता है, बट हम कुछ कभी कोई चांसेस नहीं लेते कि कभी कहीं कुछ क्रैश हो गया या कभी कुछ ऐसा हुआ कि हम
रिकॉर्ड ना कर पाए, किसी मिस्टेकनली वो कुछ ऐसा हो गया हो तो सकता फिर है। हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैं तो कॉपी करके रख लेती हूँ। Okay then. Anything है। else? Nothing is a problem right now. नो So we'll meet in the next class, that is next Saturday, right? राइट मैम, राइट और फिर आगे का देखते हैं. ठीक है। Sure. Okay. Take care then. Bye. ओके मैम, बाय मैम, Thank you, थैंक ma'am. यू, हैव अ Welcome. Bye. गुड डे। Thanks. Bye.